یہ خطبہ شورا تشریف لائے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اب انہوں جان پئی ہیں خصوصیت کے ساتھ خطیب ساحر البیان خطیب باکمال ناشری مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری سلیم القادری اکونوی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی تشریف رکھتے ہیں، اور ایک بڑا ہی شاندار شاعر جو آواز کا بے تاج بادشاہ ہے، جسے دنیا سنیت شاعر ہندوستان جناب قاری اعجاز اکونوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. برادری کبیر شاعر اہل سنت جناب محمود رضا اکبر پوری کو آپ لوگوں نے سماعت کی. نقیب الہند نباز قوم و ملت حضرت علامہ قاری ریاض الدین صاحب قبلہ کی بڑی شاندار، بڑی جاندار، بڑی لاجواب نقابت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں بے پناہ برکت رحمت نازل عطا فرمائے. بلبل باغ مدینہ آج اسماعیلی نیٹ ورک چینل چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا والے جانت ہے کہ مولوی کوڑے بازم سریان بیٹھے ہیں. جناب قاری ریاض احمد صاحب جو سمگڑا کی دھرتی سے چل کر آپ کے دیار محبت میں حاضر آئے ہیں، چند منٹ آپ لوگ ہمیں برداشت کر لیجئے میرے بھائی. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد. یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ما المدد. یا غوث اعظم پیر ماں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر فسیحل یا الہی کلا صعب بحرمتی سید الابرار سیحل. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیرہ یا شبیر یا شبر. اب میں آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کو، جتنے لوگوں کو میرے آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی وہی سبحان اللہ بولے گا. اب میں امتحان لینا چاہتا ہوں، شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے کہا کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. اما کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی. رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. اور ہمارے کچھ محب جو چاہنے والے ہیں بھینگا راجہ پور سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں. 1 2 3 4 ہے نا، 4-5 لوگ آئے ہیں. یہ آپ کے جلسہ میں آئے ہیں یا آپ لوگوں نے ان کو نہیں بلایا ہے؟ بلکہ بڑے پیر دستگیر نے انہیں بلایا ہے. وہاں سے چل کر کے آپ کے دائرے محبت میں حاضر آئے ہیں. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے، لائق تعظیم عزت مآب جناب مولوی ناصر علی صاحب قبلہ کی دعوت پر تمامی علماء کرام تشریف لائے ہیں. اور جلسہ کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے صاحب، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. بہت جنے تو ایسے ہی پیدا ہو گیا ہے، اگر کونوں مولانا چاہے لے کے لاؤ جلسہ وغیرہ کرائے دیا جائے، کچھ بلا ٹالا ٹل جائے تو کہ مولانا صاحب خرچہ کم ہوئے گا کا. یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں صاحب. اور جو پیسہ آپ دے رہے ہو نا، چندہ بطور چندہ جو دیتے ہو، چندہ یہ سوچ رہے ہو کہ 10 روپیہ ہم جلسے میں دے دیے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ پیسے پر احسان نہیں کر رہے ہو، پیسہ آپ پر احسان کر رہا ہے. درہم و دینار آپ پر احسان کر رہے ہیں، روپیہ آپ پر احسان کر رہا ہے. کیوں مسلمانوں؟ یہی پیسہ کبھی کسی کا شراب خانے میں لگتا ہے، یہی پیسہ کسی کا جوا خانے میں لگتا ہے، یہی پیسہ کسی کے عیاشوں کے بازار میں لگتا ہے. لیکن جس کا پیسہ ذکر احمد مختار میں لگتا ہے، قسم خدا کی وہ یہاں کامیاب رہتا ہے، قبر میں کامیاب رہتا ہے، میدان حشر میں کامیاب رہتا ہے، ہر جگہ کامیاب رہتا ہے.
यार कैसा होगा आवाज और कुछ बढ़ाए तो यार कोनो में तो बोल ले यार 10 मिनट सिर्फ आवाज बढ़ा दे बाकी कुछ को हमें ना चाहिए बोल दो सुभान अल्लाह और जैसे बोलो या रसूल अल्लाह और जैसे या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी चंद मिनट अब आप यहाँ से समाप्त कर लीजिए। मेरा रब कलामे मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन कहा? अल्लाह के कायनात कह रहा है, मेरा परवरदिगार कह रहा है। साहब जमाना झूठा हो सकता है, कायनात झूठी हो सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माई चाहे जैसा बोले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अब बोल करके मैं जाऊंगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आप यहाँ बड़े पीर के मुकद्दस महफिल में आने वाले लोग ये सोच रहे हो कि हमारा बैठना बेकार चला जाएगा, हमारा सुनना बेकार चला जाएगा, हमारा उठना बेकार चला जाएगा। नहीं नहीं साहब, आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, आपका सुनना बेकार नहीं जाएगा। साहब कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा पीर तुम्हें देख रहा है, अब्दुल कादिर तुम्हें देख रहे हैं, गौसे आजम तुम्हें मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अगर अब्दुल कादिर जिलानी के नजर आप पर पड़ गई तो जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मैदाने महशर में कामयाब रहोगे। आओ बड़ी तेजी के साथ रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर मुसलमान कामयाबी चाहता है, अगर मुसलमान कामरानी चाहता है, तो उसे सच्चों के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा, उलमाए किराम के सोहबत में बैठना पड़ेगा, बुजुर्गाने दीन के तवारीख का मुताला करना पड़ेगा, अब्दुल कादिर जिलानी का इश्क अपने सीने में जमाना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, तो सच्चे पक्के आशिक पैगंबर इस्लाम के बन करके दिखाओ साहब, मुस्तफा करीम के शैदाई बन जाओ, ताकि जब आप किसी बस्ती से आपका गुजर हो, अगले मोहल्ला से आपका गुजर हो, तो जमाना जब आपका चेहरा देखे, जमाना जब आपका चलना देखे, जमाना जब आपका उठना देखे, जमाना जब आपकी रफ्तार देखे, जमाना जब आपकी गुफ्तार देखे, तो जमाना बोलने पर मजबूर हो जाए ये किसी के बाप का गुलाम नहीं जा रहा है, बल्कि बगदाद के गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, सैयदे सालार का गुलाम जा रहा है, अहमद मुख्तार का गुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आओ समाज फरमाते चलो। आजम भाई जैसा बोल रहा है बोलने दीजिए। अल्लाह ताला आपके हाथ को भी सलामत रखे। और इस बाजा में 72 किस्में हैं, कल से इंशाअल्लाह इसमें 73 किस्में पैदा हो जाएंगे। भैया बाजा में बड़ी खूबियां है। आओ समाज फरमाते चलो मुसलमानों, ये गौसे आजम के मुकद्दस और मुअत्बर महफिल है। यहाँ पर जो भी बात होगी दुनियादार की बात ना होगी, अगर बात होगी तो गुलाम अहमद मुख्तार अब्दुल कादिर जिलानी की बात होगी। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज तबाही और बर्बादी के दहाने पर हम पहुंच चुके हैं। न हमारी दुआएं बारगाह मौला में शर्फ कबूलियत हो रही है, न हमारे इबादत कबूल हो रहे हैं। जितने जलसे रोज बढ़ते जा रहे हैं, उतनी परेशानियां आती चली जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है साहब? कभी आपने अपने किरदान के अंदर झांक करके देखा है कि जलसे रोजाना हो रहे हैं, उलमाए किराम की तकरीरें पे तकरीरें होती चली जा रही है, मुक़द्दस और मुअत्बर उलमा को बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा है? हमारे घरों से बरकतों का खात्मा क्यों होता चला जा रहा है? हमारे घर में रहमतों अनवार की बारिश क्यों नहीं हो रही है? कभी आप लोगों ने सोचा मुसलमानों, आप जलसा सुनने तो आते हो, जलसा तो सुनते हो, लेकिन एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो साहब। अगर जलसे में आप आया करो, जब भी जलसे में बैठा करो तो बाअदब बैठा करो, क्योंकि इसमें मदीने के मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, इसमें पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं, इसमें फरिश्तों का नूरानी काफिला तशरीफ लाता है। और मुसलमानों तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ा के वफादार बन जाओ, पैगंबरी
इस्लाम के वफादार बन जाओ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज हम भी मुसलमान हैं, कल के भी मुसलमान थे। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी का नबी का कलमा पैगंबर इस्लाम के दामाद मुश्किल कुशा ने पढ़ा है। जिस मुस्तफ़ा का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा अबू बकर ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी को नबी का कलमा फारूक आज़म ने भी पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा हजरत हसन मुस्तफा ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने पढ़ा है। लेकिन आपको पैगाम देना चाहता हूँ साहब, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा बड़े पीर दस्तगीर ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा सैयद सालार बहलोची ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा अख्तर रजा ताजुश्शरिया ने पढ़ा है। लेकिन आज वो कामयाब क्यों है, आज वो कामरान क्यों है? जमाना उनके जमाना उनकी बारगाह में जाता है और खिलाफ अकीदा पेश करता है। मुसलमानों, अल्लाह ने कहा ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा हाथ उठा करके बोलना दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या हबीब अल्लाह। कभी ज़लज़ला तो कभी तूफान आएगा, कभी से बड़ा सामान आएगा, और जब भी करनी पड़ी भारत देश की हिफाजत तो सबसे पहले पारा बनकर मुसलमान आएगा, तो सबसे पहले आगे मुसलमान आएगा। साहब आपको बोलना पड़ेगा, अगर बोलने की ताकत रखते हो, और जो तख्त पे बैठे हैं ना, जो चौकीदारी कर रहे हैं, ये आपकी चौकीदारी कब्र में चलने वाली नहीं है, ये आपकी चौकीदारी मैदान हश्र में चलने वाली नहीं है। जो यहाँ मस्जिद में बैठा है, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस शरीफ है, तो अगर तुम लोग, अगर आप में से 3 लोग सफर कर रहे हो तो उसमें भी अपना एक अमीर चुन लिया करो और अपने अमीर की इताअत किया करो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जमात में रहा करो। जो जमात में रहते हैं, जमात से जुड़े रहते हैं, जमात की बातों पर अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। यहाँ जितने बैठे हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। वो आपका मुकद्दर जाने, वो आपका नसीब जाने। जिनको गौसे आजम यहाँ बिठाए हैं वो यहाँ पर बैठा है, जिन्हें गौसे आजम ने पिंडाल से बाहर कर दिया है वहाँ दलवागर है। हमें कोई शिकायत नहीं है साहब, जहाँ आपका दिल चाहे बैठो, हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पीछे वाले में मुकम्मल तौर से देख रहा हूँ आपको, पीछे वाले कितने लोग गौसे आजम को मानते हो? जरा हाथ उठा करके बताओ। जो पीछे तख्त पे बैठे कितने लोग गौसे आजम को मानते हैं? जो गौसे आजम को मानता होगा वही हाथ उठा करके बोलेगा। अब गौसे पाक की मोहब्बत में जरा मुसलमानों उठ जाओ साहब, ये पारा बनका मुसलमान है, ये नौजवानों का टोला चला है, ये मुसलमानों का टोला चला है, और ये बताना चाह रहे हैं ज़हूर साहब क्या बात कर रहे हो, हमें आपको समझ नहीं है, आपको मालूम नहीं है। हम पारा बनने तो जरूर देते हैं, लेकिन हमने दिल दिया है तो किसी के बाप को नहीं दिया है। हमने दिल दिया है दुनियादार को नहीं दिया है, हमने दिल दिया है किसी के लाल को नहीं दिया है। अगर पारा बनका नौजवान दिल दिया है तो मक्का के बिलाल को दिया है, आईना के लाल को दिया है, फातिमा के लाल को दिया है। बैठ जाओ, जहां जाओ बैठ जाओ। देखिए सुभान अल्लाह यार, आप लोगों ने तो हमारी बतिया के लाज रख ली हो। जब फड़ा एकदम सूखा जाता है भैया, हम लोग सो तकरीर तो कहीं नहीं पाई थे। बोल दो या रसूल अल्लाह, आज से बोले या हबीब अल्लाह। तो मैं बोलूं कुछ देर? तू मोटरसाइकिल ले ली डोली बोले, और मौली साहब कहाँ गए? और हाजी साहब मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दोबारा मदीने का हाजी बनाए और इनके सत्ते में कारी एजाज कौनवी का हाजी बनाए।
वह पीछे बैठे हैं कारी साहब। अब सुनिए आई है, बोल दो या रसूल अल्लाह, और से बोलो या हबीब अल्लाह। अब लगा है कि माशाअल्लाह मजमा यार बाजा थोड़ा फेफड़ा गुर्दा कलेजी सब हिच रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बोलूंगा मेरे भाई। कितने लोग इमाम हुसैन, कितने लोग हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, जरा अतबा करके बताए। देखिए अली वो है, अरे भैया जो मैं बोला था वही बोलो जो तुमने। हजरत अली सच्चों की जमात में से, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, कामन से वाबस्ता। अली जिसकी जमानत ले ले वो वली होता है, नबी जिसकी जमानत